ये किसान की खून पसीने की मेहनत है, जिस मेहनत का किसान को बेसब्री से इंतज़ार था। और आज अल्लाह का फजल करम है कि ये मेहनत जो किसान की थी वो रंग लाई। आप देख लीजिए, इस वक्त भी अगर आप देखेंगे ये किसान जो है अपनी खेत में काम कर रहे हैं और इस वक्त भी पसीने में लथपथ है। ये काम बहुत मुश्किल काम है। इस काम को करने के लिए किसान को कई महीने लगते हैं। लेकिन जब धान की पनीरी हम लगाते हैं, धान की पनीरी लगाने से इस स्टेज तक, जिस स्टेज में धान की फसल जो है वो तैयार होती है, एक किसान को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लगातार 6 महीने दिन और रात। जबरदस्त मजेदार काम। अच्छा, जबरदस्त मजेदार। اہن حظ آ थका वका माशा? نہ کرن وول کتہِ تھکہِ أمِس عادت آسہِ अच्छा, आज کوٗتاہ خوشی چھُو تُہۍ کہِ یہِ گوٚو دانہِ گوٚو تیار؟ واریاہ کۭژاہ آسان چھِ آش کہِ یہِ کر گژھِ تیار؟ یہِ چھِ اُمید رۄب سٕنٛز آسان وۄنۍ چھِ أسۍ انتظار کران انشاءاللہ گژھِ تیار شُکُر رۄب سُنٛد شُکُر خۄدایَس تَتھ کُن باوجوٗد بنیٛاو ٹھیٖک ٹھاک پھل؟ آ شُکُر رۄب سُنٛد پھل چھِ ٹھیٖک؟ بالکل اصل۔ شالی تیار ہونے کے بعد میں سب سے پہلا کام یہی ہے کہ لوگ شالی کو کاٹتے ہیں۔ اس وقت کسان لوگ جو ہے اپنے کھیتوں میں شالی کاٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور آج شالی کاٹنے کا کام کشمیر میں عروج پر ہے۔ روڈن کرے واریاہ امید کم، لوکن ہن ذمہ دارن ہن امید گئی واریاہ کم۔ البتہ خدا سُنٛد چھُ لاکھ لاکھ شکر، یوٗتاہ تہِ شکر کرو تیوٗت چھُ کم، کیازِ تٔمۍ سٕنٛدِس گرس منٛز چھِ دیر تتٮ۪ن اندیر کینٛہہ یِم اَسہِ امید آسہٕ ختم گٔمژٕ۔ البتہ تٔمۍ ترٛوو سُہ وقتہٕ وقتہٕ ییٚلہِ پتہٕ سُہ بٲرِش اَسہِ پیٚیہِ واریاہ امید ہٕرے لوٗکن تمام کہِ تیوٗت دانہِ بنیٛاو یوٗت نہٕ بنٲنی اوس کینٛہہ، ییٚمِچ نہٕ اُمیدٕے ٲس تمہِ کھۄتہٕ بنیٛاو زیادٕ۔ یہِ چھُ اللہ تعالیٰ ہس پکناوُن پنُن بنٛدٕ۔ 5,87,000 ٹن جموں کشمیر میں رائس کلٹیویٹ ہوتا تھا 2020 میں، جس میں لگ بھگ 60% رائس کشمیر ڈویژن میں کلٹیویٹ ہوتا تھا۔ 2025 سے بھی پہلے اگر ہم بات کریں، آج تک لگ بھگ ہم نے 33,000 ہیکٹر لینڈ گوا دی، جس میں پیڈی فیلڈ کی کلٹیویشن ہوتی تھی یا جس میں دان کی فصل کی کلٹیویشن ہوتی تھی۔ کئی لوگوں نے اس لینڈ کو اورچرڈ میں تبدیل کیا کیونکہ کلائمیٹ بھی ایک فیکٹر تھا، بارشیں نہیں ہوئی، پانی کی قلت تھی، لوگ مجبور ہوئے، لوگ نے پیڈی فیلڈز کو کنورٹ کیا اورچرڈس میں، کیونکہ اورچرڈس میں ہمیں اتنی پانی کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، تو لوگوں نے بہتر سمجھا کہ ہم پیڈی فیلڈس کو کنورٹ کر دیں اورچرڈس میں۔ کئی جگہوں پہ ایسا ہوا کہ لوگوں نے پیڈی فیلڈس کو ختم کیا، وہاں پر انہوں نے کنسٹرکشن کی یا انہوں نے کمرشل پرپز کے لیے استعمال کی۔ آپ دیکھ لیجئے، میں بھی ایک لوکیشن پر اس وقت موجود ہوں، آپ دیکھ لیجئے یہ گھر جتنی بھی کنسٹرکشن یہاں پر ہوئی ہے، یہ کنسٹرکشن پیڈی فیلڈس میں ہوئی۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ غلط کر رہے ہیں، ان کی بھی مجبوری تھی، جب ان کے پاس لینڈ اویلیبل نہیں تھی تو انہوں نے پیڈی فیلڈز میں جو ہے اپنے گھر بنائے یا اپنے دکان بنائے۔ ٹاؤن ایریاز کے آس پاس میں جتنی بھی ایگریکلچر لینڈ تھی وہ دھیرے دھیرے پوری کمرشل پرپز کے لیے استعمال ہوئی، جہاں پر کنسٹرکشن ہوئی، جہاں پہ دکانیں بنے، لیکن پیڈی فیلڈ جو ہے وہ ختم ہوئے۔ جموں کشمیر میں یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے کہ دن بہ دن پیڈی فیلڈز میں یا رائس کلٹیویشن جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ جہاں پر 5,87,000 ٹن رائس کلٹیویٹ ہوتے تھے، وہاں پر شاید آج 5 لاکھ ٹن ہی رائس کلٹیویٹ ہوتے ہیں۔ یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے کہ دن بہ دن چاول سے ہم محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ کشمیر کے کتنے لوگ اس پہ ڈیپینڈ ہیں؟ ڈپینڈ اس پر سارے ہیں جی، کرنے کے لیے تیار کم ہے، اچھا، کرنے کے لیے کم ہے، کرنے کے لیے کم۔ لیکن مجھے پتا ہے لوگ گورنمنٹ جاب ڈھونڈتے ہیں، کیا اگر بچے نوجوان؟ وہی ہے نا کہ میں یہ کہتا ہوں، یہاں اکثر لوگ آپ کو ملیں گے، وہ کہیں گے کھیتی باڑی گھاٹے کا سودا، مگر میں کہتا ہوں نفع کا سودا، نفع کا سودا ہے۔ تو لیکن مجھے بتائیے، نوجوان پڑھے لکھے، ان کو کم سے کم یہ سمجھ میں آنا چاہیے ایگریکلچر پہ اگر کام کریں گے ہمیں روزگار یہاں سے بھی فراہم ہوگا۔ میں جناب یہ کہوں گا، میں کھیتی باڑی کرتا ہوں، میرے پاس باغ بھی ہے، قریب میرے سے 10 آدمی ہمارے سے منسلک ہوتے ہیں۔ اچھا اچھا، میں خوش ہوں، ایک 10 گھر کا روزگار چلتا ہے، دوسرا ہمارے بھی جتنا ہمیں چاہیے اس سے 10 گنا زیادہ ملتا ہے۔ اریگولر کلائمیٹک چینج جو ہے کافی زیادہ دیکھنے کو مل رہی ہے۔ جب دھوپ کی ضرورت ہوتی ہے تو چھاؤں ہوتی ہے، جب بارش کی ضرورت ہوتی ہے تو گرمی ہوتی ہے، جب گرمی کی ضرورت ہوتی ہے تو سردی ہوتی ہے، یعنی کہ اریگولر کلائمیٹک چینجز، کچھ ایکسپرٹس کا ماننا ہے یہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ویدر میں اس طریقے کی اریگولر چینجز آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے کسان لوگوں کو کافی زیادہ سفر کرنا پڑتا ہے، یا جس کی وجہ سے کسان لوگوں کو کافی زیادہ نقصان بھی ہوا ہے۔ اس بار بھی کسان لوگوں نے امید چھوڑی تھی کہ شاید ہی ہمیں ایسا پھل ملے گا، شاید ہی ہمیں ایسی فصل ملے گی، لیکن جب میں نے کسان لوگوں سے بات کی، انہوں نے کہا کہ جناب یہ اللہ تعالیٰ کا
करम है, ये कुदरत का करिश्मा ही हम समझते हैं कि इस बार फसल अच्छी मिली, इस बार फसल में कोई ज़्यादा खराबी नहीं है। हम सोच रहे थे कि जो इस साल खुशहाली चली थी, पानी की किल्लत हुई थी, नदी नाले सूख चुके थे, पानी अवेलेबल नहीं था, तो किसान लोगों ने सोचा था कि शायद जो फसल कम मिलेगी, शायद ये दान जो आप देख रहे हैं ये दान इतनी नहीं होगी, ये अंदर से इसके दाने जो है वो खाली मिलेंगे। जब आज ये शाली को काटने आए तो इन्होंने देखा जो ये धान की फसल है ये बिल्कुल अच्छी क्वालिटी की है, और जो इन्होंने सोचा भी नहीं था वो आज इनको देखने को मिला, जिसकी वजह से ये लोग काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। इस शाली की वजह से कश्मीर में गरीब लोगों का रोज़गार चलता है। आपने देखा ही होगा कश्मीर में लगभग 80% लोग जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, इसी शाली पे ही डिपेंड है। वो इस सीज़न में काम काज करते हैं, मेहनत करते हैं, और इनको यकीन होता है कि हमें इस सीज़न के अंत में मुआवजा मिलेगा। जिस किसान के पास में ज़्यादा लैंड होती है वो इस शाली को आखिर में बेच देता है और उसके एवज में उसको पैसे मिलते हैं, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, जिसकी वजह से अपनी डेली रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी कर देता है। और ये कश्मीर के किसानों की मैं कहूँगा कि ये बैकबोन है। आपको बताऊँगा ये स्पेशल क्वालिटी का चावल है। इस वक्त ये दान है, जब इस दान के छिलके उतारे जाएंगे मशीन के ज़रिए से, फिर ये चावल में तब्दील होगा, और ये चावल जो है पूरी दुनिया का सबसे बेहतरीन चावल है। ये किसान लोग जो शाली बांधते हैं ये एक प्रोफेशनल काम है, एक आम लेबर इस काम को अंजाम नहीं दे सकता है। आप देख लीजिए किस तरीके से प्रोफेशनली इसको बांधते हैं। जनाब तुम वन तो मैं कचा मेहनत वोल काम ये बड़ असल मेहनत, ये दान गड़न वारिया कसब दान गड़न। अच्छा ये वारिया कसब आम नफर हेकने गड़ित की आम नफर हेकने दान गड़ित की इस पे। अच्छा अच्छा अगर कह शुज जमा त्रो तुम छकरन दान सोरे छकरन दान दान वन छकरन वो अच्छी प्रोफेशनली पे हुशमत है ट्रेनिंग ने मस मे गई वो ट्रेनिंग हम। अच्छा ट्रेनिंग करना अनजा हुई कितना शुरू करना थी एक बाबा। तो नाज़रीन ये देख लीजिए आप ये जो ये शाली को बांधने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके से इसको प्रोफेशनली जो है ये बना रहे हैं। ये एक आम लेबर नहीं कर सकता है, इसमें कम से कम बंदे को एक प्रैक्टिस होनी चाहिए, उसके बाद में ये आप शाली बांध सकते हैं। इस शाली से कश्मीर में कई सारे बेरोजगार नौजवानों का रोजगार फराहम होता है। आप देख लीजिए ये इस वक्त जो मेरे साथ में आप देख रहे हैं ये यहाँ के बेरोजगार जवान है, जो जवान इसी फसल से, धान की फसल से अपना रोजगार हासिल करते हैं। पंजाब और कश्मीर के चावल में काफ़ी ज़्यादा अंतर है, काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। ये बहुत ही ताकते, ये बहुत ही स्पेशल है, लोग इसको बड़े शौक से खाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होता है क्योंकि किसान को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद में यहाँ पर इनको चावल फराम होता है। देख लीजिए सूखने के बाद में किसान लोग इसको एक जगह पे जमा कर लेते हैं, फिर यहाँ से उठा के इसको दान के ढेर बना देंगे, या दान का टीला बनाएंगे, या इसको थप्पड़ बनाएंगे, जिसकी वजह से ये दाने जो आप देख रहे हैं ये दाने थोड़े नरम होते हैं, ये कच्चे होते हैं, और थप्पड़ में या फिर दान के ढेर जब बन जाता है वहाँ पर ये 10-15 दिन रहता है, ये पूरा पक जाता है। उसके बाद में इससे चावल निकलेगा, और वो चावल जो होता है वो दुनिया का सबसे स्पेशल चावल होता है, सबसे टेस्टी चावल होता है। ये सफ़र कितना टफ रहा? बहुत टफ रहा, मगर हम ऊपर वाले के बहुत शुक्रगुजार हैं। हमारे इलाके में बहुत मेहनत करके ऊपर वाले ने सपोर्ट किया, तो ये एरिया बच गया। अच्छा, आसे पास हमारे सज्जद खबे वहाँ तो रोड से ख़त्म हो गया, मगर हमारा एरिया बच गया, शुक्र ऊपर वाले का। तो सर मुझे बताइए कि इस चावल और पंजाब की चावल में कितना फ़र्क है? आसमान और ज़मीन। अच्छा आसमान और ज़मीन। आसमान और ज़मीन। अच्छा ये क्विंटल कितने का हो जाता है? ये क्विंटल मैं तो एग्रीकल्चर को सीड देता हूँ शाली। अच्छा अच्छा 3500 रुपए क्विंटल हम देते हैं उनको। अच्छा आप सीड देते हो एग्रीकल्चर देते हैं पिछले 35 साल से। अच्छा आप देते हो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को सीड? बिल्कुल, यानी कि आप बहुत ही एक्सपर्ट फार्मर। बिल्कुल 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 जनाब। और हमारे पास मेरे ख्याल में इस एरिया में जितना हम फसल उगाते हैं इतनी मेहनत भी नहीं करता कोई, और इतना फसल भी नहीं लेता जमीन से कोई। तो सर मुझे बताइए कि इस साल फसल ठीक ठाक? बहुत बढ़िया, लाख क्वालिटी बहुत बढ़िया। तो सर मुझे एक बात बताइए, आपकी आजकल की डेट में लोग इस एग्रीकल्चर लैंड को कन्वर्ट करते हैं कमर्शियल लैंड में, मकान वगैरह। वो तो मजबूरी है लोगों को, वो तो मजबूरी है। अच्छा मजबूरी, वो मजबूरी है, शौक से तो नहीं करते हैं। वो हो गया तो एक दिन ऐसा होगा कि पूरा लैंड खत्म हो जाएगी, दान ये ऊपर वाला ही जाने। हम कल तक ये नहीं सोचते थे कि जम्मू एरिया में ये हो जाएगा, जो पहाड़ी गिरेगा। परसों वहाँ बस्ती थी, आज नहीं है। हो सकता है कल को और कुछ बहाना होगा, बस्ती ही ना रहे ये ऊपर। मगर मुझे नहीं लगता है। ये यहाँ एक बुजुर्ग का दुआ है कश्मीर में कि यहाँ 2 फुट को कहते हैं एक आस्था। अच्छा। उसमें कहते हैं आस्था को लगेगा एक खुर से निकलेगा एक खार। अच्छा हो गया 80 किलो। ये ऊपर वाले को देना दिया है, और वो देगा तसली तो कम में भी देता है। अच्छा अच्छा
अगर इंसान कोशिश करेगा वो तसल्ली होना चाहिए। जी, तो आप बिल्कुल सेटिस्फाई, आप खुश हो इस सीजन मैं के? बिल्कुल बहुत सेटिस्फाइड। अच्छा, हर जगह पे ठीक ठाक ही है अल्लाह ताला ने? इस एरिया में बातरगांव से गुशी बुही पोरा, बातरगांव हांजी पोरा तक ये एरिया खुशकसाली से मुतासिर नहीं हुआ। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है हम पर कि हम लोगों को अपने खजाने से ये दिया है। मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है, जितना इंसान मेहनत करेगा उतना ही रंग लाएगा फिर अल्लाह ताला। ठीक है, मेहनत से कोई मजदूरी मिलती है, बगैर मेहनत घर में बैठे बैठे थोड़ी मिल जाती है। जो मेहनत करेगा वही काटेगा। चावल का रेट है वो सही है? रेट इसलिए ज्यादा है कि जमीन जब कम हो गई थी ना, जहाँ जिसके पास 10 कनाल है वो 1 कनाल बेचता है, 2 कनालों में अपना मकान बनाता है, फिर वहाँ 10 कनालों में 7 कनाल बच जाता है और इसी के हिसाब से सारे जमींदार करते हैं। और जबकि जमीन कम बची, जमीन कम हो जाती है और इसीलिए रेट बढ़ जाती है। कितना अलग है उस सरकारी चावल से? सरकारी चावल पंजाब से चावल बहुत अलग है, बहुत अलग है, कहने की बात नहीं है। वो तो 2000 रुपए में क्विंटल है, जबकि ये 6000 तक पहुँच गया कश्मीरी चावल।